Okay, 27. Find the area of the rectangle if the perimeter is 52 centimeter. Just demonstrate कर लो 52 centimeter pyramid is given to me and we need to find the area and this is the rectangle. So क्या करना है यहाँ पे? x plus y equals to 50. X multiplied by y equals to 52. X plus, if this is your x, this is your y, so you accordingly x plus y will be equal to 52. X multiplied by y. That will be equal to 52. 52. No. No, sorry. That will be no. X 2x plus 2y. Yes, 2x plus 2y will be equal to 52. Okay, x plus y will be equal to 26. So we can say that my x will be equal to 26 minus y. Minus y. Yeah, so this will be 26 minus y. तो अब हमने area find करना है, so area के लिए आप इन दोनों को multiply कर लो, this one and this one. So from this you will get the area. Okay. Okay. So x for area आपका क्या हो जाएगा? Area will be equal to x and y. X times y. Okay. So x value is this. Y value is simple, वही y आपने लेना है. So यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? This will, your area will be equal to 26y minus y square. ये समझ आ गई. So this will be your area. Okay. तो फिर नंबर में नहीं लिखना उसको? नहीं, बस उन्होंने आपको perimeter given है. Wait. Perimeter means sum of all sides. Okay. So perimeter sum of all sides will be equal to 2x plus 2y, that's equal to 52. वो आपके पास वैल्यू आ गई. सही है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास y में इसलिए वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स में वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल के डिफरेंट साइड हमारे पास डिफरेंट होते हैं. अच्छा, आपको कैसा पता लगेगा कि आपका आंसर नंबर्स में नहीं आएगा? एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने मुझे पेरीमीटर्स की का इंफॉर्मेशन दिए हैं. सही है. अगर वो एक साइड का इंफॉर्मेशन भी दे देते तो फिर वो ठीक था. अगर ये स्क्वायर होता तो फिर आपका आंसर नंबर में आ जाता, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में सारे साइड सेम होते हैं. तो ये भी x होता है, ये भी x होता है, ये भी x होता है, ये भी x होता है. तो वहां पे आपका 4x विल बी इक्वल टू 52 और x आपकी वैल्यू आ जाती. फिर आपका वो एरिया क्या था? एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर. सो ये x स्क्वायर का वो आप ले लेते स्क्वायर, सो यू विल गेट द एरिया. लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में आपके साइड डिफरेंट होते हैं. सो डिफरेंट साइड्स के लिए आप इसको x ले लो और इसको आपने x नहीं लेना बिकॉज दिस इज योर x साइड. तो इसको आपने डिफरेंट अल्फाबेट लेना है. y ले लो, z ले लो, कोई भी अल्फाबेट ले लो. सो लेट्स से मैंने यहाँ पे y ले लिया. एरिया क्या होगा? xy और पेरीमीटर क्या होगा? दैट विल बी 2x प्लस 2y हो जाएगा, यानी 2x प्लस 2y. तो पेरीमीटर मुझे गिवन है, दैट इज 52. एरिया मुझे फाइंड करना है. सो दैट विल बी इक्वल टू दिस. सही है. इसको फिर यहाँ पे पुट कर लो, सो आपकी वैल्यू वो y में आ जाएगी. सही. Okay, question number 28. The result of multiplying a number by 3 and subtracting 5 is the same as doubling the number and adding 9. What is that number? हमारे पास क्या हो जाएगा? The result of multiplying a number by 3. So let's say let the number is x. Okay, ये आपने पहले लिखना भी है. So 3x and subtracting 5 is equal to doubling the number and adding 9. So yes, so from this equation you will get the number. X minus 2x equals to 5 plus 9. Yes. So from this you will get 14. Okay, next question. 29. Two girls having $76 between them. If the first gave the second $7, they would each have the same amount of money. How much did each girl have? Actually यहाँ पे उन्होंने कहा कि two girls having $76 between them. So it means कि each girl amount कितना हो जाएगा? Between them, between means के मिड में, यानी 76 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा एक के साथ. So ये क्या आ जाएगा? Each girl amount is 38. 38 को 38 के साथ ऐड कर लो, you will get 76.
लेकिन फिर अगर सेकंड इफ फर्स्ट गिव द सेकंड $7 तब तो सेम ही होगा ना. नहीं, if the first give the second $7, if the first give to second the second $7, they would have same amount of money. तो इस तरह कर लेते हैं कि सेव ये 38 माइनस 7 कर लो. फर्स्ट गर्ल ने $7 दे दिए. एक को फिर 38 माइनस 7 करेंगे और एक को 38 प्लस 7 करेंगे. Yes. This will be 31. And this will be 38 plus 7, that will be equal to 41. So second girl will have 41 and first girl will have 31. अच्छा, इसको आप ये मेथड भी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 29 का, और वो भी हो सकता है कि अगर आप इस तरह कर लो कि लेट से आप इस तरह कर लो कि टू गर्ल्स हमारे पास x और y हो जाए, like this. X is the first girl and Y is the second girl, and total amount is $76. So if the first give the second $7, तो आपका फर्स्ट ने सेकंड को $7 दे दिए. ओके, सो सेकंड के साथ $7 आ जाएंगे. सो इससे क्या जाएगा, x माइनस y हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू $14. तो यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि दिस इज x प्लस y, दैट इज इक्वल टू $76. तो ये दोनों कट जाएंगे. यू विल गेट 2x is equal to 100, no 90 $. So your x will be equal to $45. Your y will be equal to 45 minus 76. So from this you will get 31. सही है. तो ये मेथड भी है, लेकिन ये थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड. ये भी हैं जो आपको इजी लगे तो आप वो यूज के लिए करो. सही है, ये भी वैसे ही है. क्वेश्चन नंबर 30. 31/2. ओके, तो लेट्स से हमारे पास टेनिस को मैं T से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, हॉकी को मैं H से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, योर T विल बी इक्वल टू H plus 12. If the price of 2 is 31, so price of 2, it means that T plus H is equal to 31. Then what, find the cost of the tennis. तो tennis का cost क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे पास इससे H क्या आ जाएगा, your H will be equal to 31 minus T हो जाएगा. Now you need to put the H value over there, so you will get 31 minus T, that's 12 हो जाएगा. So from this you will get 2T is equal to 9. ओके वेट, मैं समझाता हूँ. अच्छा, हमारे पास क्या है, a tennis racket cost $12 more than a hockey stick. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन किस तरह बन जाएगा, योर टेनिस कॉस्ट इज इक्वल टू $12 प्लस H हो जाएगा. H इज द कॉस्ट ऑफ द हॉकी रैकेट. ओके, इफ द प्राइस ऑफ द 2 is 31, if the price of the 2 is 31, okay, it means you will add the tennis racket and hockey stick amount. Okay, so that will be equal to $31. So फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टेनिस रैकेट. तो मैंने टेनिस रैकेट का कॉस्ट फाइंड करना है. सो इस इक्वेशन से H आपका क्या जाएगा, ये T उस साइड पे चले जाएगा. सो दिस विल बी 31 माइनस T हो जाएगा. इस H की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर लो. सो योर T विल बी इक्वल टू H आपका 31 माइनस T हो जाएगा, और ये आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे. सही है. सो यहाँ से आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी. ये माइनस T इस साइड पे ले जाओ, सो दिस विल बिकम प्लस T. सो 2T आ जाएगा. 31 माइनस प्लस 12. Oh, sorry, this is 31 plus 12. 31 plus 12 is equal to 31 plus 12 is equal to 43. So 43 divided by 2 is equal to 21.5. अच्छा, उन्होंने सिर्फ टेनिस रैकेट का कॉस्ट मांगे, so that is $21.5. अगर हॉकी का भी मांगते हैं तो हॉकी का भी आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं.